Good morning, student. Good morning. Good morning. What about other student? Good morning, Good Vartani. morning, sir. Good morning, Good sir. morning. Okay. Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. Which topic we have discussed in last lecture? Chain rule. Chain rule. Okay. So in chain rule, how many methods are there? So you can revise it here. Okay. So first we go for the chain rule introductory part, not Four example. methods. Yes, we have already completed all the examples on chain rule. Am I right or wrong? हमने चेन रूल के सारे एग्जाम्पल कर दिए थे कि नहीं? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then after discussion of the chain rule, we go for the next topic, and which is the implicit function, partial differentiation for implicit function. So we go for that after the discussion of the chain rule. So you can see here in our PPT. Okay, this is about the implicit function. So first I discussed about the chain rule. Yes. Okay. So in chain rule, we have discussed first two introductory. That means chain rule for functions of two independent variables. That means z is the function of xy and xy is the function of t. Same way you can define u is the function of xyz and xyz are the function of t. Then we go for the chain rule for the function of two independent variable, that means r and s, and one intermediate variable, it is x. Then same way we can define chain rule for the two independent variable, that means r and s, and two intermediate variable x and y. Okay, and last we define the chain rule for function of two independent variables and three intermediate variables. That means independent variables are r and s and intermediate variables are x, y, z. Okay, then we discuss the examples on it. So I think this is the last example जो हमने डिस्कस किया था वो ये. ओके, ये कंप्लीट कर दिया था ना हमने. If z is equal to ln u square plus v. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we have completed. Okay, we have completed this topic, our chain rule. Okay, now we go for the partial derivative of implicit function. So I stop sharing this and I share next PPT. Yes. Okay, is it visible to all? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so in unit 4 we discuss about partial derivative and geometrical interpretation. Then we go for the Euler's theorem with corollary and then applications. In last lecture we have completed chain rule, and now we go for the implicit function. So is there any idea about the implicit function? Anybody? Any idea? Any No, guess? sir. Okay, okay, no. Thank you for your confirmation. Okay, so implicit function, you done some examples for the total derivative, means ordinary derivative. So implicit function means if you have any equation f of xy is equal to 0 और उसमें से अगर आप y is equal to f of x लिखते हो और उसका dy by dx फाइंड करते थे कि नहीं? Yes, sir. So this is the one of the case of implicit function, means you have the equation like f of xy is equal to 0 और उसमें से बाद में आपको implicit, वो implicit है तो उसको बाद में आप y is equal to f of x में ट्रांसफर करो and then find the derivative of that term or that equation. Same यहाँ पे होगा कि suppose z is equal to f of x is defined implicitly by f of xy is equal to 0. तो यहाँ पे f of xy is equal to 0 है तो उसमें से मैं यहाँ पे y is equal to something f of x लिख सकता हूँ कि नहीं?
दैट मीन्स z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू f ऑफ x हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और उसमें से मुझे अगर इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो सकता है? सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू, अब वाई इज द फंक्शन ऑफ ओनली एक्स, तो टोटल डेरिवेटिव मिलेगा वहां पे, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा वहां पे, एंड राइट साइड तो जीरो ही है। तो यहां तक सबको पता चल गया? Yes, sir. ठीक है, तो इसका आंसर तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू 1 प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे पता है कि मैं जब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पढ़ा था तब ये आता था मुझे डी वाई बाई डी एक्स, इसके लिए मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो इसमें से भी मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ। तो व्हाट इज माई डी वाई बाई डी एक्स? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइड बाय डेल एफ अपॉन del y. If I go for with the symbol, that means minus f lower suffix x and f lower suffix y. So this is my dy by dx of implicit function, and this process is known as the implicit differentiation. So is there any confusion or any doubt in this concept? No, sir. What about others? No, sir. No, sir. Okay. नो तो सर। No, sir. जो मैंने किया वही का वही है, सिर्फ कंडीशन ये लगेगी कि ये जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो हो जाता है देन इट विल बी इन्फिनिटी। सो यहाँ पे इफ डेल एफ अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू जीरो देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वही का वही। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब यही स्टडी में अगर 3 वेरिएबल में एक्सटेंड करता हूं तो व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टडी? सपोज z इज इक्वल टू f of x y इज डिफाइंड इम्प्लिसिटली बाय f of x y z इक्वल टू 0। मींस यहाँ पे हम 3 वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन होगा उसको मैं z इज इक्वल टू समथिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं? Yes or no? यस सर। Yes, sir. ओके, तो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होगा वहां पे। अब ये जो पूरा हमने स्टडी किया वही का वही स्टडी अब x एंड y दोनों के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर आप चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करने जाते हो तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स होगा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स होगा। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो, एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे इसका कोई रोल ही नहीं है क्योंकि y इज नॉट डिपेंड ऑन x, है ना। तो यहाँ से हमारे दो एक्सप्रेशन अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन कौन से अलग हो जाएंगे? सो डेल जेड अपॉन डेल एक्स मुझे मिलेगा एंड दूसरा डेल जेड अपॉन डेल वाई मिलेगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो we think about only first and third term and second and third term, मीन्स ये दोनों को स्प्लिट करना पड़ेगा तब जाके इसका इंपॉर्टेंस आएगा, नहीं तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. लेकिन मैं Yes, जब sir. फर्स्ट एंड थर्ड के बारे में सोचूंगा तो अगर इस हिसाब से गया मैं प्रीवियस तरीके से तो यहाँ पे क्या होगा देखो, मैं चेंज कर देता हूँ तो आपको पता चले। हाँ, यहाँ पे तो मैं फर्स्ट के थ्रू में गया, मीन्स पहले x के बारे में ही सोचता हूँ तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू 1 होगा प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड। नाउ z इज ओनली फंक्शन ऑफ x बिकॉज वी आर डिस्कसिंग x, सो dx इज इक्वल टू 0। तो मुझे dz बाई dx इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस एफ एक्स अपॉन एफ जेड। ओके, सेम तरीके से मैं अगर फाइंड करूँ dz अपॉन dy तो मेरा मिलेगा माइनस एफ वाई अपॉन एफ जेड। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir.
लेकिन जब ये दोनों Yes, sir. साथ में सोचूंगा, साथ में मीन्स बिकॉज यहाँ पे z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो जब दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस होते हैं तो हम d को क्या बोलते हैं, d की जगह पे क्या करना पड़ेगा आपको, पार्शियल के लिए सोचना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला पार्शियल के लिए ट्रांसफर हो जाएगी एंड डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स अपॉन एफ जेड हो जाएगा एंड यहाँ पे डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस एफ वाई अपॉन एफ जेड हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. How many Yes, sir. students understand this concept? Please raise your hand. Very good. 46. Okay. Anand, Dravid is on hold. Okay. खुशी सा, खुशी, नेक्स्ट नेम क्या है? ओके, गजीपरा, मासूम, अमर, व्रज, प्रथम। इज देयर एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट? सर एक बार फिर से कर देना ओवरव्यू। ओके ओके ओके, सो हियर देखो यहाँ पे क्या है कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई में हमने एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 को ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो इसका अगर आप चेन रूल के हिसाब से सोचेंगे तो हमको मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो व्हाट आई हैव माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। ओके, अब यही चीज को अगर मैं एक्सटेंड करूं 3 वेरिएबल के लिए तो क्या होगा, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफाइंड इम्प्लिसिटली बाय एफ ऑफ एक्स वाई z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है उसका ज्यादा रोल नहीं रहता, इसलिए उसको हम दो तरीके से स्प्लिट करेंगे, x के लिए एंड y के लिए, और उसके बाद उसको मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे x के लिए स्प्लिट किया तो क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि z इज द फंक्शन ऑफ x ओनली इंडिपेंडेंटली, एंड यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0 में z इज द फंक्शन ऑफ y ओनली। बट जब हम दोनों का साथ में डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए जो ये d है वो डेल हो जाता है। नाउ क्लियर? तो उससे अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो डेल एफ अपॉन डेल जेड नॉट इक्वल टू 0, देन डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू दिस वन एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू दिस वन। नाउ इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? No, sir. Okay, so we go for the next first example. So you can see here first example is find dy by dx at 1 1 if y cube plus y square plus 5y minus x square plus 4. Okay, व्रज आपको पता चल गया? आपने जो क्वेश्चन पूछा था रिपीट कीजिए ना सर। नाउ आर यू गेटिंग पॉइंट? यस सर। ओके, सो यहाँ पे देखो फाइंड dy by dx एट 1 1 हमको मुझे फाइंड करना। अब ये इम्प्लिसिट का एग्जांपल है कि नहीं वो यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट दिस देन दिस इज द f ऑफ x y इक्वल टू 0। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Right. Yes, sir. ओके, तो f ऑफ x y इज इक्वल टू 0 मिला मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट द इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे सीधा आपको पहले उसको f ऑफ एक्स वाई बताना है कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब ये मैंने f ऑफ एक्स वाई बोल दिया। देन dy बाई डी एक्स की फॉर्मूला क्या है, माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। ओके, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो एफ एक्स मीन्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, इसका 0 प्लस 0 प्लस 0 Minus 2x। ओके, एंड एफ वाई के बारे में सोचेंगे दैट मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y,
तो 3y² प्लस 2y प्लस 5 इसका 0 और इसका भी 0. इज इट क्लियर एवरीबॉडी अप टू हियर? Yes, sir. So Yes, sir. on 3y² plus 2y plus 5. Okay, so this is my dy by dx. So dy by dx at कौन से पॉइंट पे बोला है हमको? 1 1. तो I have to substitute x is equal to 1 and y is equal to 1 in this expression. So I have 2 into 1 divided by 3 into 1 square plus 2 into 1 plus 5. So total answer is my 2 upon 3 plus 2 plus 5. So you have 2 by 10, and if you solve it, then you have 1 by 5. So is there any doubt in this example? Anybody? No, sir. No, sir. No, sir. इसको सिस्टमेटिक कैसे लिखना है? तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने स्मॉल f बोला है, उन्होंने कैपिटल F बोला है. तो f of x y z इज इक्वल, सॉरी x y नॉट z, f of x y इज इक्वल टू y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 5y माइनस x स्क्वायर प्लस 4. देन दे फाइंड del f upon del x is equal to minus 2x, del f upon del y is equal to 3y square plus 2y plus 5. then at point 1 1. ओके, उन्होंने दूसरी तरीके से किया है और मेरी मेथड अलग है. कैसे? मैंने पहले dy by dx फाइंड किया, उसके बाद पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया. वो लोग क्या कर रहे हैं? पहले fx fy फाइंड किया और उसमें पहले पॉइंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन गो फॉर द dy by dx. ओके, दोनों वे से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे del f upon del x at 1 1, तो आपको -2 मिलेगा. del f upon del y at 1 1, वो 10 मिलेगा. तो इफ यू गो फॉर द dy by dx at 1 1 डायरेक्टली, देन the formula is minus del f upon del x upon del f upon del y at point 1 1, and it is minus of -2 by 10. और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 by 5. देखो आंसर तो सेम ही आया. आप कोई भी मेथड से जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स काट लिए जाएंगे. डन? एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. थिंक अबाउट सेकंड एग्जांपल. ओके, तो सेकंड एग्जांपल में व्हाट इज माय f of x y? Zero. जीरो नहीं है, f of x y इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे f of x y फंक्शन क्या है? X into y plus y square X y plus y square minus 3x minus. Okay, if you I find first fx, तो what is my fx? fx means del f upon del x. तो क्या मिलेगा? y plus 0 minus 3, तो y minus 3. fy what my fy? del f upon del y. so यहाँ पे x बचेगा, y का 1, ये 2y and then 0 0. okay, तो x plus 2y. so if you go for dy by dx, तो dy by dx is minus fx upon fy. इसको भी आप याद रख सकते हो. कैसे? जो नीचे वेरिएबल है डिनोमिनेटर में, उसका पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर आएगा, एंड जो ऊपर है मींस न्यूमरेटर में है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव नीचे आएगा. इस तरीके से आप क्रॉस में भी आप सोच सकते हो. मैं ऐसे ही याद रखता हूँ. तो माइनस fx मींस y minus 3 upon fy means x plus 2y. now substitute the point. तो पॉइंट कौन सा दिया है? -1 1. दैट मींस x is equal to -1 रिप्लेस करना है, एंड y is equal to 1. तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं, तो 1 -3 डिवाइड बाय -1 प्लस 2. ओके, तो यहाँ पे माइनस, ऊपर -2 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस 2. क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, तो यही का यही यहाँ पे किया है, सिर्फ कैपिटल F किया है. f of x y इज इक्वल टू दिस वन, del f अपॉन del x, del f अपॉन del y फाइंड किया. पहले वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एट पॉइंट -1 1 हमको मिलेगा del f अपॉन del x -2, del f अपॉन del y मिलेगा 1. now dy by dx at -1 1 is equal to minus del f upon del x upon del f upon del y at 1 1 equal to minus 2 by 1. it is 2. दोनों का आंसर सेम ही है, you can see here. okay, so this is the final answer of dy by dx. is there any doubt or confusion in this example? Anybody? No, sir. No, sir. No, sir.
Okay, next example. Assume that the equation y square plus xz plus z square minus e raised to z, एक मिनट कोई छूट नहीं जा रहा है ना, yes, okay, minus c equal to 0 defines z as a function of x and y, say z is equal to f of xy. Find the value of constant c such that f of 0 e is equal to 2 and compute the partial derivative del z upon del x and del z upon del y at the point xy is equal to 0 e. तो यहाँ पे आपको दो चीज फाइंड करने के लिए बोला है कि पहले c फाइंड करो, किसकी हेल्प से, f of 0 is equal to 2 की हेल्प से, and then compute the partial derivative del z upon del x and del z upon del y, ये आपको फाइंड करना है at point 0 e. Is it clear everybody? Yes, sir. तो पहले c फाइंड करना है, तो मेरा यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो f of x y z इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, y स्क्वायर प्लस xz प्लस z स्क्वायर माइनस e रेज़ टू z माइनस c. ओके, अब इसमें से मुझे c फाइंड करना है, तो c फाइंड करने के लिए मेरे पास x y z होना चाहिए, तब जाके c मिलेगा ना. तो यहाँ पे हमको दिया है f of 0 e इज इक्वल टू 2. अब इसको मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ कि x y इज इक्वल टू z. तो व्हाट इज द माय वैल्यू ऑफ x y एंड z? x equals 0, y equals 2e. 0 e, z is equal to 2. 2. ओके, सीधा मिल गया हमको x y z. बस, तो x y z की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जो इक्वेशन दिया है इक्वल टू 0 वाला. सो उसमें से मुझे क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा कि नहीं? Yes, sir. और वो c मिलने के बाद वी गो फॉर द डेल z अपॉन डेल x एंड डेल z अपॉन डेल y. तो डेल z अपॉन डेल x की तो मुझे वैल्यू पता है कि डेल z अपॉन डेल x मीन्स क्या है, मेरी फॉर्मूला माइनस एफ एक्स अपॉन एफ जेड, एंड डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है, मीन्स फॉर्मूला क्या है, माइनस एफ वाई अपॉन एफ जेड. देखो मैंने यहाँ पर भी क्रॉस किया था ना, 3 वेरिएबल के लिए हमने डिस्कशन. Yes, sir. तो वही फॉर्मूला से हम डेल z अपॉन डेल x एंड डेल z अपॉन डेल y निकालेंगे और उसके बाद एट पॉइंट 0 e फाइंड कर देंगे. दैट इज अवर फाइनल आंसर. तो फ्लो ऑफ द एग्जांपल पता चल गया है सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, यू कैन सी हियर लेट f ऑफ x y z इज इक्वल टू जो दिया है वो हमने लिखा, एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 दिया है, तो इसका मीनिंग हुआ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू e एंड z इज इक्वल टू 2. अब उसकी हेल्प से मुझे जो इक्वेशन दिया है उससे मैं c फाइंड करूंगा. तो y स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस ई रेज़ टू जेड माइनस c इक्वल टू 0, दैट इज माय गिवन एक्सप्रेशन. तो उसमें मैंने ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. तो y स्क्वायर मीन्स ई स्क्वायर, ओके, x मीन्स 0, z मीन्स 2, z स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस ई रेज़ टू z मीन्स ई रेज़ टू 2 माइनस c इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस c, दैट मीन्स आई हैव 4 माइनस c इज इक्वल टू 0. इट गिव्स मी c इज इक्वल टू 4. ओके, तो c इज इक्वल टू 4 मिल गया मुझे. डन. अब c इज इक्वल टू 4 मिल गया, देन व्हाट इज माय न्यू f ऑफ x y z? तो f ऑफ x y z मेरा हो गया y स्क्वायर प्लस x इंटू z प्लस z स्क्वायर माइनस ई रेज़ टू z माइनस c की जगह पे 4 रखना है. दिस इज माय न्यू इक्वेशन नंबर 1. सो इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. No, sir. Give me quick response, all the students. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Now I am using these two formula. So मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, fx, fy and fz. तो मैं इससे fx फाइंड करूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा कैपिटल है तो fx कैपिटल फाइंड करेंगे. दैट मीन्स डेल f अपॉन डेल x. क्या होगा, ये 0, यहाँ पे z बचेगा, है ना, प्लस 0 ई रेज़ टू z 0, बाकी का सब कुछ 0. fy में फाइंड करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2y, इसका 0, इसका 0 और इसका 0 0, तो 2y. fz X X
प्लस 2z आएगा ना, 2x 2z होगा माइनस e रेज टू z भी मिलेगा क्योंकि e रेज टू z का e रेज टू z. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. अब ये तीनों ही तीनों जो भी हमको यहाँ पे चाहिए वैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z रिस्पेक्टिवली वी गेट del f upon del x means z, del f upon del y means 2y, del f upon del z means x plus 2z minus e raised to z. जो हमने फाइंड किया वही का वही. अब ये तीनों की वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, पहले वो पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं. ओके, तो ये पॉइंट कौन सा दिया था हमको? 0e. लेकिन हमारा जो फंक्शन है उसमें तो कितने वेरिएबल प्रेजेंट है? 3 है ना. और जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे वहां पर भी x, y, z तीनों है. तो x, y को अगर मैं एक्सटेंड करूं x, y, z में तो x, y, z इज इक्वल टू क्या होगा? 0e तो था, अब z कितना है? 2. ओके, तो मेरा नया पॉइंट हुआ 0e2. तो मैं तीनों की वैल्यू 0e2 पे फाइंड करूंगा. तो del f अपॉन del x एट 0e2 क्या होगा? 2 इंटू, हमको नहीं जानना है मिश्री. ओके, del f upon del x 0e2 that is 2, del f upon del y 0e2 2e and del f upon del z 0e2 4 minus e square. मिलेगा ना एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, yes sir. Yes, then sir. we go for the formula. del z upon del x की फॉर्मूला है माइनस del f upon del x डिवाइड बाय del f upon del z. del z upon del y की फॉर्मूला है माइनस del f upon del y upon del f upon del z. तो del f upon del x एट 0e2 ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया है. तो व्हाट इज माय आंसर? del f upon del x का आंसर क्या आएगा? 2 अपॉन del f upon del z का मेरे पास 4 माइनस e स्क्वायर है, तो 4 माइनस e स्क्वायर दैट मींस 2 अपॉन e स्क्वायर माइनस 4. del z अपॉन del y में मैं अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो del f अपॉन del y मेरे पास है 2e अपॉन 4 माइनस e स्क्वायर. तो मेरा आंसर आएगा, माइनस जो था वो इसको रिवर्स कर दिया, मींस आगे पीछे कर दिया तो हो जाएगा पॉजिटिव, दैट मींस 2e अपॉन e स्क्वायर माइनस 4. सो दीज आर द रिक्वायर्ड partial derivatives at 0e2. So is there any question or any confusion in this example, student? No, sir. No, sir. No sir. Okay, then next, find del z upon del x and del z upon del y at 1 1 1 if z cube minus xy plus yz plus y cube minus 2 is equal to 0. This is very simple example because you have capital X Y Z. क्या है मेरे पास? capital X Y Z, z cube minus xy z cube minus xy plus yz plus, सॉरी यहाँ पे हाँ, y cube minus 2. Am I right or wrong? Right. ओके, तो fx फाइंड करो पहले, fy फाइंड करते हैं, fz फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे fx क्या होगा? माइनस y, ये 0 0 0 0 सारे 0. fy क्या होगा? fy मुझे मिलेगा माइनस x प्लस z प्लस 3y स्क्वायर. यस, एंड fz होगा 3z स्क्वायर माइनस ये 0, यहाँ पर y बचेगा, यस प्लस y एंड बाकी के दोनों 0. अब नाउ आई गो फॉर fx एट गिवन पॉइंट. कौन कौन सा है? 1 1 1. तो -1 इसका आंसर आया. fy एट 1 1 1 एंड दैट इज माय आंसर -1 +1 +3. तो ये मेरा आंसर आएगा 3. एंड fz at 1 1 1 that is my 3 into 1 means 3 y1. तो मेरा आंसर आएगा 4. Is it clear everybody up to here? Yes, sir. Yes, sir. del z by del x की फॉर्मूला है मेरी fx अपॉन fz. तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो माइनस तो है ही, -1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4. तो मेरा आंसर आया 1/4. एंड del z अपॉन del y अगर मैं फाइंड करता हूँ दैट इज माइनस fy अपॉन fz
that is my minus fy means 3, fz means 4, so the minus 3 by 4. Okay, so is there any doubt or any question? No, sir. बहुत सिंपल एग्जांपल है, f ऑफ एक्स वाई जेड मैंने स्टेट किया, तीनों ही तीनों मैंने फाइंड कर दिया, एट पॉइंट तीनों ही तीनों फाइंड कर दिया. ओके देखो -1 3 एंड 4 हमारे जैसे आ गए आंसर, वही आना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा. डेल जेड अपॉन डेल एक्स मैंने एट पॉइंट 111 फाइंड किया, तो यहाँ पे 1/4 आया, एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई एट 111 करूंगा तो -3/4 आएगा. ओके, तो ये हमारे दोनों ही दोनों आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट, okay, try for this example. Chalo student, dy by dx, find dy by dx at 0 ln 2 if x e raised to y plus sin xy plus y minus ln 2 is equal to 0. इसके लिए ट्राई करो. चलो यहाँ पे कितने वेरिएबल का फंक्शन है? 2. Okay, so keep in your mind you have to start with the f of xy. So x e raised to y minus plus sin xy plus y minus ln 2. Okay, अब नेक्स्ट यहाँ पे एक थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये x इंटू वाई एंगल में है या y अलग से है, तो उसके लिए हमको सॉल्यूशन ही देखना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे देखो, फाइंड एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेज़ टू वाई प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई माइनस ln 2. तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो दिया है वो क्या होगा, ई रेज़ टू वाई का ई रेज़ टू वाई और एज इट इज एक्स का 1 हो जाएगा. अब साइन एक्स वाई का देखो उन्होंने साथ में लिया है ना, तो साइन का हो जाएगा कॉस. तो ये जो है उस आपको एंगल में दिया है, तो कीप इन योर माइंड. ओके, एंगल में नहीं होता और साइन एक्स इंटू वाई होता तो क्या हो जाता, सिर्फ कॉस एक्स होता. अंडरस्टैंड? यस सर. ओके, तो यहाँ पे ई रेज़ टू वाई प्लस वाई कॉस एक्स वाई हो रहा है, इसलिए वो साथ में है. एंड देन डेल एफ अपॉन डेल वाई अगर आप फाइंड करेंगे तो एक्स एज इट इज ई रेज़ टू वाई का ई रेज़ टू वाई साइन एक्स वाई का कॉस एक्स वाई एंड एक्स वाई में एक्स इंटू वाई है उसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई मीन्स एक्स बचेगा और वाई का 1 होगा. अब वाई का 1 ln 2 तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा. तो मुझे dy by dx निकालना है, तो व्हाट इज माय फॉर्मूला dy by dx का? minus fx by fy. माइनस कैपिटल fx अपॉन कैपिटल fy. तो ये दोनों ही दोनों सब्स्टिट्यूट करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, 0 ln 2 पे फाइंड करेंगे. तो एट पॉइंट 0 ln 2, तो 0 ln 2 मीन्स x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है, y इज इक्वल टू ln 2. तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. चलो हम यहाँ पे देखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट 0 ln 2, एक करके देखते हैं तो आपको पता चले. तो ई रेज़ टू ln 2 आएगा, यस, प्लस ln 2 इंटू कॉस एक्स मीन्स 0 इंटू ln 2. ओके, ये एंगल में. अब e रेज़ टू ln 2 मीन्स ln मीन्स बेस e है, तो सीधा इसका आंसर 2 आ जाएगा. यस और नो? यस Yes, सर. sir. यहाँ पे ln 2 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे देखो cos 0 इंटू समथिंग तो cos 0 है, लेकिन cos 0 मीन्स 1. 1. तो 2 प्लस ln 2 दैट इज योर डेल एफ अपॉन डेल एक्स. यहाँ पे देखो ये भी मिल रहा है. ओके, सेम वे वी कैन फाइंड डेल एफ अपॉन डेल वाई एट 0 ln 2 मीन्स x की जगह पे 0 एंड y की जगह पे ln 2. तो यहाँ पे 0 इंटू ई रेज़ टू ln 2 प्लस 0 इंटू कॉस 0 इंटू ln 2, ये दोनों ही दोनों 0 हो जाएंगे और इसका आंसर 1 आएगा. तो 1 0 प्लस 0 प्लस 1, सो इट गिव्स मी 1. अब ये दोनों ही दोनों फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो dy by dx एट 0 ln 2 इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइड बाय डेल एफ अपॉन डेल वाई एट 0 ln 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका आंसर था डेल एफ अपॉन डेल एक्स का 2 प्लस ln 2 एंड यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई का आंसर है 1. तो यहाँ पे -2 प्लस ln 2 इज योर फाइनल आंसर. सो इज देयर एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? एनीबॉडी? No, sir. नो सर.
No, sir. Okay, then we go for next example. Find del z upon del x and del z upon del y at, देखो यहाँ पे पॉइंट चेंज हो गया, पाई पाई पाई, लेकिन डरना नहीं है, यहाँ पे पाई 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 मीन्स क्या होगा, x इज इक्वल टू x equals to pi, y equals to y and z पाई equals to इक्वल टू पाई एंड z इज इक्वल टू पाई, जो भी आएगा उसमें हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम स्टार्ट करेंगे, f ऑफ x y z इज इक्वल टू दिस वन, जो भी दिया है वो, ओके। उसके बाद डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पे तो सीधा मिल जाएगा, तो साइन का कॉस हो जाता है, तो कॉस एक्स प्लस वाई, क्योंकि इसी में एक्स है, इसमें एक्स है ही नहीं तो उसका जीरो, और यहाँ पे साइन का फिर से कॉस एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस जेड का 1 प्लस जीरो, ओके। डेल एफ अपॉन डेल वाई का सिमिलरली वी कैन फाइंड एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड का भी सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं। नाउ एट पॉइंट पाई 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 पहले फाइंड करेंगे, तो एट पॉइंट पाई पाई पाई, तो cos पाई प्लस cos पाई प्लस पाई, तो cos 2 पाई प्लस cos 2 पाई, लेकिन हमको पता है कि cos 2 पाई प्लस cos 2 पाई मीन्स 2 cos 2 पाई। अब लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि cos 2 पाई की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 पाई? 1. ओके, तो इससे बेटर है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, थर्ड सेम में भी आपको यूजफुल होगा। cos n पाई की वैल्यू होता है -1 रेज़ टू n, मीन्स आप किसी का भी n यहाँ पे रिप्लेस करो और आंसर निकालो। फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड 7 पाई, तो cos 7 पाई की वैल्यू क्या आएगी, -1 रेज़ टू 7, तो -1 रेज़ टू 7 गिव्स मी -1। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. cos 100 पाई मुझे चाहिए, तो क्या होगा आंसर? 1. 1, क्योंकि -1 रेज़ टू 100 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि इवन है, ऊपर इवन नंबर है इसलिए, ओके। सेम तरीके से आप साइन का भी डिस्कशन कर सकते हो। साइन n पाई ऑलवेज 0 होता है, आप कुछ भी यहाँ पे n की जगह पे रिप्लेस करो। इफ आई सब्स्टिट्यूट 1000 पाई, तो ऊपर भी उसका आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा जब साइन है तब। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे हमको मिल गया। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, सेम तरीके से उसका भी आंसर 2 ही आएगा। डेल एफ अपॉन डेल जेड, उसका भी आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे cos 2 पाई हो रहा है इन ईच पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये तीनों का मुझे किस में रिप्लेस करना है, फॉर्मूला में, दैट मींस डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट पाई 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 इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड पाई पाई पाई, तो -2 अपॉन 2 -1, दोनों का आंसर -1 ही रहेगा। सो इज देयर एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट इन दिस एग्जांपल, एनीबॉडी? No, sir. Okay, so this is about the implicit function. तो implicit function में कोई confusion नहीं है ना? No, sir. No, sir. How many student understand about the partial derivative of implicit function? Please raise your hand. (53) में से 48, तो बाकी लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम है? You can discuss with me. Okay, if don't discuss with me, then how I can know what is your problem? Yes, very good. 50. Now 50. खुशी, मासूम and अमर, ब्रज, any doubt? बादल, ओके, ब्रज को डाउट नहीं है, उन्होंने रेज कर दिया। बादल, एनी डाउट? No, sir. ओके, तो प्लीज रेज योर हैंड। मासूम, आर यू देयर? ओके, नाउ ओनली 2 पीपल, मासूम कुमार एंड खुशी। खुशी एंड मासूम, आर यू देयर? ऑनलाइन का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है ना? ओके, लेकिन डिसएडवांटेज है कि आप इसे चालू रख के चले जाएंगे तो इस तरीके से हम ऑनलाइन स्ट्राइक भी कर सकते हैं, एम आई राइट? और पकड़ सकते हैं, नॉट इश्यू। ओके, इफ यू हैव नो डाउट देन वी गो फॉर आवर लास्ट
टॉपिक ऑफ द यूनिट। उसके लिए मुझे पहले प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट। ओके, यस, इट इज वेरी स्मॉल टॉपिक, so you can see here. Oh yes, okay, so we already discussed about the partial derivative and geometrical interpretation, Euler's theorem with corollary and their applications. Then we done about the chain rule. We today discuss about the implicit function, and last topic is our total differentials. Okay, so total differential is another topic of this unit. So उसमें क्या करना है, तो you can see here. Is it visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So total differential means, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो total differential means suppose z is equal to f of x y is a function of two variables x and y, then total differential, okay, total differential is defined as dz. यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, देखो dz by dx या फिर dz by dy ऐसा कुछ नहीं है, तो ये जो दिया है that is the symbol for total differentials. और total differential कैसे फाइंड करेंगे, तो you have to directly go with the del z upon del x into dx plus del z upon del y into dy, तो उसको बोलते हैं total differentials. Is it clear everybody? Yes, sir. क्योंकि यहाँ हाँ लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम फाइंड करना है dz, तो यहाँ पे dz इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो आपको पहले उसको del z अपॉन del x करके इनटू dx करना है, del z अपॉन del y इनटू dy करना है. सो दिस इज माय टोटल डिफरेंशियल्स. If you want to extend this study with three variables, then same way you can define. Suppose u is equal to f of x, y, z is a function of three variables x, y and z. The total differential is defined as du is equal to, जैसे बोला ऐसे कि उसका with respect to x into dx, with respect to y into dy, with respect to z into dz. Is it clear everybody? In two variable and three variable. Yes, sir. Yes, sir. Everybody, please give your response. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसमें हमको करना क्या है, तो सिंपल है. यहाँ पे क्या करना बाकी बचता है हमारे पास, कोई बताएगा? अगर टू वेरिएबल में है तो हम ये दो फाइंड करेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सेम तरीके से थ्री वेरिएबल में तो ये तीन फाइंड करेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. जितने भी आगे हमने जितना भी डिस्कशन किया है उससे हमको पार्शियल डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे और वी रिप्लेस हियर. क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये. ओके, तो फाइंड टोटल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन z इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 7. तो यहाँ पे देखो आपको सीधा दे दिया है कि z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई. तो जब भी आपको पेपर में ऐसी सिचुएशन दिखाई दे और यहाँ पे लिखा होगा टोटल डेरिवेटिव, ओके, तो ये दोनों का क्लब होता है, तब यू हैव टू फाइंड dz. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ये पता चला कि कब फाइंड करना है. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको हम फॉलो करेंगे. तो z इज इक्वल टू यहाँ पे 4x क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 7 दिया है. उससे पहले हम दो चीज फाइंड करेंगे, del z अपॉन del x एंड del z अपॉन del y. तो del z अपॉन del x क्या मिलेगा, 3 आगे आएगा, दैट मींस 12x स्क्वायर माइनस यहाँ पे x का 1, y स्क्वायर कांस्टेंट है उसके लिए, तो y स्क्वायर बचेगा, ये 0 ये 0, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. del z अपॉन del y फाइंड करेंगे तो ये 0, यहाँ पे माइनस 2xy बचेगा प्लस 3 और इसका 0. ओके, तो हमने दोनों फाइंड कर दिया. नाउ द टोटल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन z इज बहुत ही सिंपल है, dz इज इक्वल टू del z अपॉन del x इंटू dx प्लस del z अपॉन del y इंटू dy. अब यहाँ पे जो फाइंड किया है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और del z अपॉन del y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. दैट्स ऑल. क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, उसके बाद थोड़ा रीअरेंजमेंट किया उन्होंने, दूसरा कुछ नहीं है. आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है इसलिए. ओके, सो सेकंड एग्जांपल, इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड देन ऑब्टेन du. अब इसमें देखो थोड़ा हरकत किया उन्होंने, टोटल डेरिवेटिव लिखने की जगह पे क्या लिख दिया, du.
तो du का मीनिंग क्या हुआ? Total Total derivative. derivative. एंड हियर u ऑफ x y z हमको दिया है x y z, तो मुझे उसकी फॉर्मूला क्या है? तो du इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल x dx प्लस डेल यू बाय डेल y dy प्लस डेल यू बाय डेल z dz। सिर्फ मुझे ये तीन फाइंड करना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। एग्जाम्पल फिनिश। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं हम। u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा? वाई जेड, डेल यू बाई डेल वाई एक्स जेड, डेल यू बाई डेल जेड एक्स वाई। अब मुझे पता है द टोटल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन u इज du is equal to del u by del x dx plus del u by del y dy plus del u by del z dz. Substitute all this value. This is your final answer. Then, is there any doubt in this example? Anybody? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Next example. Find total derivative of the function z is equal to x cos y minus y sin y. तो इसमें से भी हमको टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसे भी यहाँ पे वेरिएबल आइडेंटिफाई करो। कितने वेरिएबल का फंक्शन है ये? Two variable. डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई दो ही फाइंड करना है, तो हमने फाइंड कर दिया डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया। एग्जाम्पल फिनिश। पार्शियल डेरिवेटिव तो फाइंड करना सबको पता चल गया है ना, या वो डिस्कस करने की जरूरत है? No, नहीं sir. पता चल गया। Yes, sir. नहीं सर। ओके, पता चल गया है दैट मींस। ओके, तो यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे कॉस वाई माइनस वाई कॉस वाई, डेल जेड बाई डेल वाई माइनस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स और डी वाई एंड डी एक्स एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई थोड़ा क्या किया है कि यहाँ से माइनस कॉमन निकल रहा था तो माइनस कॉमन निकाला। दैट्स ऑल। डन एवरीबॉडी? एनी कंफ्यूजन? No, No, sir. sir. No sir। If u is equal to ln x square plus y square plus z square, then obtain du. Again du आया, that means total derivative। तो हमको यहाँ पे तीन वेरिएबल है, तो डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करेंगे, डेल यू बाई डेल जेड फाइंड करेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो u इज इक्वल टू दिस वन, डेल यू बाई डेल एक्स होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0। तो यहाँ पे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करेंगे तो सेम, लेकिन 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा। डेल यू बाई डेल जेड फाइंड करेंगे तो 2z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा। द टोटल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन u इज du is equal to del u by del x dx plus del u by del y dy del u by del z dz। अब ये तीनों ही तीनों इसमें रिप्लेस करेंगे और उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम? यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो ना, यहाँ पे 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz और उसका एलसीएम लेके ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? एनीबॉडी? No, sir. No, sir. No sir। So this topic is completed and also our unit number 4 is completed. So is there any doubt or confusion in today's session as well as in unit number 4? No, sir. No, sir. No sir। sir. Okay, so we completed